Topic is Union in C. In C programming language, the union is a collection of elements of the different data type. The union is used to create user-defined data type in the C programming language. As the union used to create a user-defined data type, the union is also said to be user-defined data type in C. In other words, the union is a collection of non-homogeneous elements. Using union, we can define new data types called user-defined data types that hold multiple values of the different data type. Now, how to define union? What is a union? Union is a collection of different type of elements under a single name that act as user-defined data type in C. Generally, unions are used to define a record in the C programming language. Unions allow to combine elements of a different data type into a group. The elements that are defined in a union are called members of union. Now, how to create union? To create union in C, we use the keyword called union. We use the following syntax to create union in C programming language. Union, union name, opening curly bracket, data type, member 1 semicolon, data type member 2, comma member 3. We define number of members, then curly bracket close, semicolon. Now this is the general format to create union. Now following is the example of creating union called student, which is used to hold student record. So in this example, student is the name of union और इस स्टूडेंट यूनियन में हमने तीन मेंबर्स लिए हैं. पहला मेंबर है हमारा STUD_name जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर. सेकंड हमारे पास में डेटा मेंबर है रोल नंबर जिसका डेटा टाइप है इंटीजर. थर्ड यहाँ पे जो डेटा मेंबर है वो है परसेंटेज और उसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट. उसके बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया है और सेमीकोलन. तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ यूनियन स्ट्रक्चर and the name of this union structure is student. Now few important points to be remembered. The first point, every union must terminated with a semicolon symbol. And second important point, union is a keyword. It must be used in lower letters only. So these 2 points are very important when we create union in C. Next topic is memory allocation of union. When the union are used in the C programming language, the memory does not allocate on defining union. The memory is allocated when we create the variable of a particular union. The variable of a union is created, no memory is allocated. The size of memory allocated is equal to the maximum memory required by an individual member among all members of that union. Now the variable stud_1 and stud_2 are allocated with 30 bytes of memory each. Now see the figure. Student is the name of union and the first data member is stud_name
and the data type of this data member is char, but the size of this char is 1 byte. But in stud underscore name data member, we have to define the size of this data member is a 30. So the size of stud underscore name is a 30 bytes. Next data member is roll underscore number and the data type is integer, and the size of integer data type is a 2 bytes. Next data member is a percentage, and we define data type is a float, and the size of float data type is 4 bytes. Now we add 30 bytes, 2 bytes and 4 bytes. The addition is a 30 bytes. Here the variable of student union is allocated with 30 bytes of memory, and it is shared by all the members of that union. So next topic is initialization of union variable. The initializing union variable is union data. Data is the name of union, opening curly bracket, inti float f char str20. अभी जो ये एग्जांपल्स दिया है, इस एग्जांपल में हमने जो यूनियन हमारे पास में जो वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स में हमने डेटा इनिशियलाइज किया है. तो वो डेटा है 12 एंड 12.20. ये डेटा हमने इनिशियलाइज किया है. तो ये जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम शोज हाउ टू इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ अ यूनियन वेरिएबल्स. तो जैसे हमारे पास में इनिशियलाइज के लिए हमने जो डेटा लिया है 12 एंड 12.12, तो इसमें पहला जो डेटा हमारे पास में है वो है इंटीजर, और सेकंड जो डेटा हमारे पास में है वो है फ्लोट. तो हमारे पास में यहाँ पे जो यूनियन वेरिएबल है, द नेम ऑफ यूनियन वेरिएबल इज डेटा 1. तो डेटा 1 जो यूनियन वेरिएबल है, डेटा 1 यूनियन वेरिएबल में हमको 2 डेटा इनिशियलाइज करना है, और इनिशियलाइज करने के बाद में वो डेटा हमको स्क्रीन के ऊपर में डिस्प्ले करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम we have to initialize value of union variables, and this value is to display on the screen. Next topic है accessing members of union. Dot operator or period operator, also known as member access operator. We use dot operator to access members of simple union variable. और इसका एक जनरल फॉर्मेट दिया है कि हम किस तरह से यूनियन वेरिएबल का यूज़ करके मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं. तो उसका है जनरल फॉर्मेट दिया है यूनियन वेरिएबल डॉट मेंबर नेम. तो एक सिंपल एग्जांपल दिया है stu1 डॉट रोल नंबर. तो stu1 ये हमारा यूनियन वेरिएबल है, और रोल अंडरस्कोर नो ये हमारा मेंबर है. तो इस तरह से हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम भी दिया है. नाउ दिस प्रोग्राम इज़ टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ यूनियन मेंबर्स. तो किस तरह से हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मेंबर्स यूनियन वेरिएबल के थ्रू मेंबर वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे. और उसका एक आउटपुट भी दिया है. उस आउटपुट में हमको बताया गया कि वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 25,185 एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, दिस इज़ अ फ्लोटिंग वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ द str इज़ अ ABC. तो इस तरह से हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके डेटा मेंबर्स के वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन. तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे. नाउ फर्स्ट डिफरेंस है इन स्ट्रक्चर, द कीवर्ड स्ट्रक्ट इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर. इन यूनियन द कीवर्ड यूनियन इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ यूनियन. यानी स्ट्रक्चर को यदि हमको डिफाइन करना है तो हम स्ट्रक्ट ये कीवर्ड का यूज़ करेंगे,
और यूनियन को यदि हमको डिफाइन करना है तो हम यूनियन इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है इन स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द सम ऑफ साइज ऑफ इट्स मेंबर्स। और सेकंड डिफरेंस इन यूनियन, द साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर का साइज़ यहाँ पे कैलकुलेट किया था यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज़ यदि हमको ये फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर और यूनियन में, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है। इन स्ट्रक्चर थर्ड डिफरेंस है, इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर विथ इन अ स्ट्रक्चर is assigned unique storage area of location. Now in union, memory allocated is shared by individual members of union. तो इस तरह से जो मेमोरी अलोकेट होती है, मेमोरी जो शेयर होती है स्ट्रक्चर वेरिएबल और यूनियन वेरिएबल इसमें, तो उसमें क्या डिफरेंस है ये हमको थर्ड पॉइंट से दिखाई देता है। फोर्थ पॉइंट, इन स्ट्रक्चर द वैल्यू ऑफ अ मेंबर विल नॉट अफेक्ट other members of the structure. Now in union, the value of any of the member will alter other members values. तो यहाँ पे जो हमारे पास में मेंबर्स है, मेंबर्स के जो वैल्यूज़ हैं विल नॉट अफेक्ट अदर दैन द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, और जो यूनियन में हमारे पास में जो मेंबर्स के वैल्यूज़ हैं विल ऑल्टर अदर मेंबर वैल्यूज। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। लास्ट जो पॉइंट है, इन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम। ओके, स्ट्रक्चर में हम इंडिविजुअल मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। इन यूनियन ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम। हम यहाँ पे एक ही मेंबर्स को यूनियन में एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, सेवरल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस। काफ़ी सारे हम मेंबर्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, बट इन यूनियन ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी इनिशियलाइज। तो ये दोनों में डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में। नेक्स्ट टॉपिक है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज़ यूज्ड टू असाइन नेम्स टू द इंटीग्रल constants which makes a program easy to read and maintain. The keyword enum is used to declare an enumeration. तो enumeration का ये हमने एक देखा है कि enumeration क्या है और उसका यूज़ क्या होता है, और उसको हमको यदि क्रिएट करना है, उसको डिक्लेयर करना है, तो हम enum इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो enumeration हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो enumeration क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट दिया है, enum नेम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 and curly bracket close semicolon. Now here enum keyword is used to define the variables of enum type and the elements are separated by commas. तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। वीक इज़ द नेम ऑफ इन्यूमरेशन और इसके एलिमेंट्स हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नाउ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ enum. नेक्स्ट अभी हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? नाउ डिक्लेरेशन ऑफ enum वेरिएबल्स। नाउ वी क्रिएट enum वेरिएबल एज enum वीक in opening curly bracket Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, then curly bracket close and semicolon. उसके बाद में हम एक मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, void main. सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ये वेरिएबल हमारा होगा इन्यूमरेशन वेरिएबल। तो void main में हमने एक इन्यूमरेशन वेरिएबल डिफाइन किया है w। तो हमने इस तरह का एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, enum week. Week is the name of enumeration and w is the variable of enum. Here w is the variable of enum named week. This variable will represent a week. Now we can also declare enum variable as enum week in opening curly bracket
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, then curly bracket close and W. Now here we define enum using this format. Now the topic is values of members of enum. All the elements of an enum have a value. By default, the value of the first element is 0, that of the second element is 1, and so on. So here we discuss one example using enum. Now सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है. वीक ये हमारा इज़ द नेम ऑफ इन्यूमरेशन और उसमें हमने एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन इनिशियलाइज किए हैं. वो एलिमेंट्स है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. उसके बाद में हमने एक मेन फंक्शन यूज़ किया है वॉइड मेन. तो सबसे पहले हमारे पास में इन्यूमरेशन वेरिएबल है w और सेकंड इन्यूमरेशन वेरिएबल है w1. तो पहला जो वेरिएबल है w, इसमें हमने एक एलिमेंट इनिशियलाइज किया है वेडनेसडे. सेकंड हमारे पास में जो वेरिएबल है w1, उसमें हमने एक एलिमेंट इनिशियलाइज किया है मंडे. और अभी हम दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं. और जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये हमको बताएगा कि वेडनेसडे का वैल्यू कितना है और मंडे का वैल्यू वो इंक्रीज़ करके हमको बताएगा कि किस तरह से हम उस एलिमेंट का वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो दोनों आउटपुट देखने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है. तो पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेडनेसडे वो हमको प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इन्यूमरेशन वेरिएबल यूज़ किया है वो है w. सेकंड प्रिंटफ में हमको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ मंडे वो भी हमको 1 से इंक्रीज़ मिलेगा. उसके लिए हमने जो इन्यूमरेशन वेरिएबल यूज़ किया है w1, उसको हमको 1 से इंक्रीज़ करना है. तो हमने यहाँ पे एक इस तरह से लिखा हुआ है w1 + 1. तो यहाँ पे एक आउटपुट दिया है. इस आउटपुट को यदि हम देखते हैं तो ये हमको पता चलता है कि द बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेडनेसडे इक्वल टू 2 एंड बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ मंडे इंक्रीज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जो हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू था वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 था. तो मंडे ये 0 था, तो उसको हमने 1 से इंक्रीज़ किया है. तो यहाँ पे मंडे 1 हो गया. यदि हम पहला एलिमेंट यदि 0 होता है, सेकंड एलिमेंट 1 होगा, थर्ड एलिमेंट 2 होगा, तो यहाँ पे जो ओल्ड हमारा जो वैल्यू होगा, एग्जिस्टिंग जो वैल्यू था वेडनेसडे का, वो यहाँ पे 1 था. तो यहाँ पे हमने जो w के वैल्यू को डिस्प्ले किया है, मीन्स वेडनेसडे के वैल्यू को हमने यहाँ पे जो डिस्प्ले किया है, नाउ दिस वैल्यू विल डिस्प्ले 2. तो मंडे इज़ 0, ट्यूसडे इज़ 1 एंड वेडनेसडे इज़ 2. सो यूनिमरेशन में जो हमने यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले किया है और लिस्ट में हमारे पास में जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू है इज स्टार्ट फ्रॉम 0. तो पहले जो हमने यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले किया है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेडनेसडे इक्वल टू वेडनेसडे का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है. तो w जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले किया है 2. और मंडे जो 0 था, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंडेक्स इज 0, तो इसमें उसने 1 ऐड करके हमको उसने यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट किया है, वो वैल्यू है 1. तो इस तरह से हमको वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा.